Hello, welcome to KTC. Do you want to speak in English fluently? Do you feel any hesitation while writing task 1 and writing task 2? Then welcome. We are going to start our 40 days crash course in different 40 videos. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ देयर आर some basic concepts, some tips and strategies जिन्हें ਅਸੀਂ one by one अपनी basic level ਤੋਂ intermediate level और intermediate level ਤੋਂ advanced level तक one by one discuss ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ beginning topic है ways of talking in present and ways of talking in past and ways of talking in future। जद ਅਸੀਂ इंग्लिश बोलना चाहते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। सेम इन हिंदी, मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा था और क्या कर रहा हूंगा। एक टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 different types ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। there are 4 different ways of talking in present and same these 4 different ways of talking are in past and there are same 4 different ways of talking in future। मैं ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 4 different ways ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, तो मैं कहूंगा कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। तो ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਕੰਡ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, 5 ਆਵਰਸ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਖਾ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो एक सिर्फ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਉਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਪ 1 ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟਾਈਪ 2 ਰਹੇਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ,
मेरा पढ़ाने का काम जिहड़ा हैगा वो खत्म हो चुकिया है, मैं तुहानू पढ़ाया है, मीनस इत्थे साडा काम जिहड़ा है वो फिनिश हो रहा है। इहदे विच होर भी कुछ गल्लां जिहड़ियां ने वो डिस्कस होणगियां जदों आपां इस नूं अलग तो करांगे। फिलहाल असीं इन्ना ही देखांगे कि इत्थे काम साडा जिहड़ा हैगा वो पक्का है, परफेक्ट है कि वो काम जिहड़ा है वो खत्म हो गया। ओके, एक फोर्थ टाइप जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ हैबिट की गल करते हाँ या कुछ यूनीवर्सल ट्रुथ की गल करते हाँ असी, या ऐसे काम की गल करते हाँ जिहड़ा रिपीटेडली हुंदा है, बार बार हुंदा है, बार बार हुंदा है। मैं रोज सवेरे जल्दी उठदा हाँ, मैं रोज ही उठदा। धरती सूरज दुआले घूमदी है, सो दिस इज द ट्रुथ। धरती सूरज दुआले घूमदी है, दिस इज ट्रुथ, दिस इज यूनीवर्सल ट्रुथ, घूमदी है। कुछ लोग कहते हैं तो यदि जिहड़ी आइडेंटिफिकेशन है वो ये होगी कि कोई यूनीवर्सल ट्रुथ, कोई हैबिट या जिहड़ा काम साडा रिपीटेड हुंदा है, बार बार हुंदा है, उत्थे असीं बोलदे आ मैं पढ़ाता हूं। तो मैं पढ़ाउंदा, मैं अगर इस टाइम कहूंगा मैं कहूंगा पढ़ा रहा, 15 मिनट तो पढ़ा रहा, मैं तुहानू पढ़ा चुकिया। या मैं अपनी हैबिट दसूंगा मैं पढ़ांदा हां, कोई मैनू पूछूगा तुसीं की करदे हो तां मैं कहूंगा मैं पढ़ांदा हां। हुण जिहड़ियां साडीआं चारे टाइप्स ने उन्हां नूं असीं वन बाय वन जिहड़ा है डिस्कस करांगे। तो असीं देखदे हां अपनी इस फर्स्ट वीडियो दे फर्स्ट लैक्चर कि मैं काम कर रहा और कदों तो कर रहा। मैं चाह पी रहा हां, मैं तुहानू पढ़ा रहा हां। जिवें प्रेजेंट विच असीं कहने कि मैं तुहानू पढ़ा रहा हां, तो उसे तरह पास्ट विच भी कहांगे असीं कि मैं तुहानू पढ़ा रहा सी। उसे तरह फ्यूचर दे विच भी कहांगे कि कल नू शाम नू मैं तुहानू पढ़ा रहा होवांगा। मीनस काम जिहड़ा मेरा है वो कंटिन्यू होएगा। साडे देश विच कीमतां जिहड़ियां वो वध रहीआं ने, हजे भी वध रहीआं ने, कंटिन्यू ने वधना, खत्म नहीं होईयां, वो कंटिन्यू ने, प्रोग्रेस विच ने। साडी देश दी जनसंख्या दिन प्रतिदिन वध रही है, कंटिन्यू है, कम खत्म नहीं होया, कंटिन्यू है। तो मैं तुहानू पढ़ा रहा हां, तुहानू पढ़ा रहा सी या पढ़ा रहा होवांगा। जिवें सानू हिंदी दे विच किसी ने सिखाया नहीं कि जद काम कंटिन्यू हुंदा है, प्रोग्रेस विच हुंदा है, टैंपरेरी सिचुएशंस कुछ आ जांदियां ने, डिवेलपमेंट्स आ जांदियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि साडी देश ਦੇ ਵਿੱਚ कीमतां वध रहीआं ने, ਉਹ देश तरक्की कर रहा है। उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ सेम इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फस्ट फॉर्म दे नाल ING ला के गल करांगे। जिवें मैं पढ़ाण दी इंग्लिश, मैनू वोकैबुलरी भी साडे लई आना बहुत जरूरी है। पढ़ाण दी इंग्लिश नहीं जे सानू पता तां असीं इंग्लिश नहीं बोल पावांगे। टीच, जे काम कंटिन्यू है तो वह बन जाएगा टीचिंग। मैं खा रहा, ईटिंग बन जाएगा। चाह पी रहा, टेकिंग, टी बन जाएगा। मैं जा रहा, गोइंग बन जाएगा। सुन रहा, लिसनिंग बनेगा। तो जो भी एक्शन होएगा उस फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है, उस दे नाल ING लग जाएगी, जिसनों असीं मेन वर्ब कहांगे। इंग्लिश बोलण दे लई सानू सब तो पहला सब्जेक्ट लगाना पैंदा है। सब्जेक्ट यानी कि मैं तुहानू पढ़ा रहा, ये मैं काम नू करन वाला कौन है? मैं, जिवें साडी हिंदी, साडी पंजाबी लैंग्वेज दे विच काम नू करन वाला मैक्सिमम केसेस, एक्टिव केसेस दे विच अगे आंदा है। तो उस तरीके फर्क भी पै जाता है, वो देखांगे किवें। इंग्लिश दे विच भी सब तो पहला सब्जेक्ट आएगा। तो टाइम नू डिनोट करने वास्ते जिहड़ा हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर आएगा। सानू पता है कि जे आई दी गल करांगे तो आई नाल एम लगेगा, जे ज्यादा बंदियां दी गल करांगे तो उन्हां नाल आर लगेगा। जेकर थर्ड पर्सन हुंदा है, जिवें मैं अपनी गल करूंगा आई
वी, ये मेरी गल होगी। सामने वाले ਨੂੰ मैं यू यूर कह के बोलूंगा और उस तो इलावा ही शी इट दे देयर देम ये सारे थर्ड पर्सन ने। तो राम कल्ले ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ कल्ले ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ इज लगेगा प्रेजेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो सब तो पहला सब्जेक्ट यानी कि आई, हेल्पिंग वर्ब दैट इज एम, पढ़ा रहा कम कंटिन्यू है इस करके टीचिंग लगेगा। और फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि किनू पढ़ा रहा, पढ़ाता रहा, मैं पढ़ा रहा, किनू, यू, तुहानू, तो ये ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं तुहानू पढ़ा रहा सी, तो कौन पढ़ा रहा सी, मैं पढ़ा रहा सी, आई। पढ़ा रहा सी तो टीचिंग आ जाऊगा, पढ़ा रहा सी होने करके वॉज वर आ जाएगा। तो एक पर्सन है जिहड़ा आई है, चाहे ही है, चाहे शी है, चाहे राम है, सिंगल बंदे ना वॉज लगूगा और ज्यादा होणगे वर लगूगा। और इंग्लिश दे विच यू दे नाल हमेशा ही वर लगदा है, क्योंकि इंग्लिश विच तू बिल्कुल नहीं हुंदा, इंग्लिश विच तुसी ही हुंदा रिस्पैक्टफुल, ते इस करके यू नू प्लूरल सेंस विच ही लिया जांदा है, यू नाल वर लगेगा। मैं तुहानू पढ़ा रहा होवांगा, तो पढ़ा रहा होवेगा काम कंटिन्यू होगा, इस करके इत्थे भी टीचिंग आएगा, तुहानू इस करके यू आ गया। हेल्पिंग वर्ब साडा फ्यूचर जिहड़ा हैगा शैल बी, विल भी लगेगा। तो मैं तुहानू पढ़ा रहा हां, आई एम टीचिंग यू। मैं तुहानू पढ़ा रहा सी, आई वॉज टीचिंग यू। मैं तुहानू पढ़ा रहा होऊंगा, आई विल बी टीचिंग यू। तो जदों भी काम कंटिन्यू होएगा, असी पहला हिंदी विच सोच के फिर उसनू इंग्लिश विच ट्रांसलेट नहीं करांगे, असी सीधा ही सोचांगे कि काम कंटिन्यू है, इस करके आई एम टेकिंग, आई एम टेकिंग टी। कम कंटिन्यू सी, कल कंटिन्यू सी, सो आई वॉज टेकिंग टी। कल नू कम कंटिन्यू होएगा, आई विल बी टेकिंग टी। तो सीधा डायरेक्ट इंग्लिश विच सोच रहे हां कि काम जद कंटिन्यू हुंदा है तो उसनू इंग्लिश दे विच आईएनजी ला के बोलिया जाता है, प्रेजेंट विच इज एम आर, पास्ट विच वॉज वर और फ्यूचर विच शैल बी, विल बी ला के बोलिया जाता। सेकंड वे ऑफ टॉकिंग है कि मैं कदों तो काम कर रहा हां, सवेर तो पढ़ा रहा, शाम तक पढ़ा रहा सी, काम कंटिन्यू सी, कदों तो या कदों तक या कदों तो कदों तक या कितनी देर तो काउंट करके दसना कि 2 घंटे तो कंटिन्यू है काम, तो काम फिनिश नहीं होया, कंटिन्यू है, प्रोग्रेस विच है। मैं हुण पढ़ाता रहा, लेकिन मैं तुहानू पढ़ाता रहा, लेकिन कदों तो पढ़ा रहा, सवेर तो। मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं, टाइम दसदा, तो काम दी स्टार्टिंग दसदी कि काम जिहड़ा है मेरा कदों स्टार्ट होया सी। मैं आपको पढ़ा रहा था, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कंटिन्यू टाइम है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू, शाम तक। तो मैनू इत्थे पता लग रहा है कि काम तां कंटिन्यू सी, कदों तक सी, काम दा एंड कदों होया। यह भी हो सकता है कि मैं सवेर तो शाम तक, मतलब मैनू पता लग गया कि काम स्टार्ट कदों होया, काम एंड कदों होया, सवेर तो शाम तक काम प्रोग्रेस विच सी, कंटिन्यू सी, हो रहा सी। यह भी हो सकता है कि मैं काम नू काउंट करके दसूंगा, काउंट करके दसूंगा मैं टाइम नू, टाइम जिवें काउंट किया 5 टाइम, फॉर एग्जाम्पल आवर्स, 5 आवर्स। तो मैं इत्थे गल करना चाहूंगा कि जे तां मैं पढ़ा रहा तां भी आईएनजी कंटिन्यू सेंस, जे मैं सवेर तो पढ़ा रहा तां भी सेंस जिहड़ी है कंटिन्यू रहेगी। सो टीचिंग ही रहेगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू सेंस दे विच वर्ब साडी मेन जो एक्शन हो रहा है उसदे नाल आईएनजी ला के गल करूंगा। मैं टीचिंग, टीचिंग तुहानू पढ़ा रहा, इस करके जिहड़ा साडा ऑब्जेक्ट है वो यू रहेगा, जो वर्ब दी फॉर्म तो बाद आंदा है। और इस फॉर्म दा हेल्पर जो सानू टाइम दसूगा, अगर मैं पढ़ा रहा हां ते नाल मैं दस रहा कदों तो पढ़ा रहा या कदों तक पढ़ा रहा सी या कदों तो कदों तक पढ़ा रहा सी,
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ हैज been ਜਾਂ have been ਆਏਗਾ। I ਦੇ ਨਾਲ have ਲੱਗਦਾ ਹੈ, we ਦੇ ਨਾਲ have ਲੱਗਦਾ ਹੈ, you ਦੇ ਨਾਲ have ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ have ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕੱਲਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕੱਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਪਰਸਨ I, we, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ you, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈ, he ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, she ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ has ਲੱਗੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ I have, you have, they have, I have, we have, you have, they have। लेकिन अगर he आएगा, she आएगा, राम आएगा, it आएगा तो उतना has लगेगा। तो ओके, has been और have been। So I have been जिथे I am सी, जिस जगह ते I am सी उथे हुण I am नहीं आएगा, उथे आएगा I have been। जेकर टाइम पता है कदों तो पढ़ा रहा, जे मैं पढ़ा रहा सी ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ was ਆਣਾ ਸੀ I was teaching, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ had been teaching, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ shall be will be ਸੀ ਉੱਥੇ shall have been ਜਾਂ will have been ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ teaching ਹੈ, teaching as it is ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ continuous tense ਦੇ ਵਿੱਚ teaching ਨੇ as it is ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ helping verb ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ has been, have been, पास्ट ਲਈ had been, future ਲਈ shall have been, will have been ਬਣ ਜਾਏਗਾ। और evening ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ morning ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਸਵੇਰ ਸੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ since morning। मैं 1994 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, since 1994। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, मैं कंटिन्यूटी दसूंगा कद तक सी, फिर मैं लगाऊंगा टिल। जे दोनों आ गए, सवेर तो भी आ गया, शाम तक भी आ गया, फिर लगावांगे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। कल्ले सवेर तो वास्ते सिंस है, कल्ले शाम तक वास्ते टिल है। जे दोनों आ गए सवेर तो शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग है। अगर मैं काउंट करके दस रहा कितनी देर तो 2 घंटे तो 3 घंटे तो फिर FOR है। सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फॉर 5 आवर्स। साडी वीडियो 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। तो ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇ 1 PDF ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇ 1 ਕੁਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਈਜ਼ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। तो जिथे आके तुसी चेक कर लोगे कि ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ।